ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಾಲಿಬಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರುವಂಥ ಏನು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಏನವರು ಏನು ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರೇನು ಹಿಂದೂ ಅದಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಬ್ರಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ಯಾರ. बसनगौड़ा पाटिल किसी को भी सर्टिफिकेट दे देते हैं। इन लोगों को सोचना होगा कि ये किस तरह की गंदी सियासत करते हैं। देश के संविधान पर चलना होगा, देश के कानून पर चलना होगा और देश के संविधान में रहकर बात करनी होगी। स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। हिजाब विवाद पर अब बसवनगौड़ा पाटिल भी आ गए सामने। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए बसवनगौड़ा पाटिल जी ने कहा कि मुसलमानों को अगर हिजाब पहनना ही है तो वो पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान उन्हीं के लिए उन्हें उनके धर्म अनुसार उन्हें बांटा गया है। वो जो भी अपने धर्म अनुसार करना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाए। पहले तो आप बसवनगौड़ा पाटिल जी ने क्या कहा मीडिया से, ये सुनिए। ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರೇ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲಾರ್ದೇ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಅದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ತರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಜಾಬಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಹಂಗೇನೆ ಹೋಗ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಡೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಆಧಾರ ಮ್ಯಾಗೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಅವಾಗನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಶ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಬಾದ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತರ ಮಾಡ್ರೆ ತಿಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನ ತಿಂದು, ಈ ದೇಶದ ನೀರು ಕುಡಿದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿಯಲಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಉರ್ದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿ ನೀವು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಇರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅವ್ರು 15-16% ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 50% ಅವ್ರು ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಏನು ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರೇನು ಹಿಂದೂ ಅದಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಬ್ರಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಬ್ರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸೋಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ತಾಲಿಬಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರುವಂಥ ಏನು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. सर, बसवनगौड़ा पाटिल तो कह रहे हैं कि अगर हिजाब पहनना हो तो पाकिस्तान चले जाएं, तुम्हारे लिए तो पाकिस्तान दिया गया है। बसनगौड़ा पाटिल एक ऐसे नेता हैं जो भी जबान में आता है वो कह देते हैं बिना सोचे समझे। बसनगौड़ा पाटिल किसी को भी सर्टिफिकेट दे देते हैं।
बसनगौड़ा पाटिल का कहना है कि हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाए। तो मैं बसनगौड़ा पाटिल जी से यही कहूंगा कि हर देश का नागरिक को इस देश के संविधान ने यह हक दिया है, वो अपने धर्म अनुसार कुछ भी कर सकता है, मगर सिर्फ धर्म अनुसार और संविधान के दायरे में रहकर। बसनगौड़ा पाटिल जी का यह कहना सरासर गलत है। पाकिस्तान को अलग करने का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे धर्म अनुसार ही किया गया है, ये उनका स्पष्ट कहना है। पाकिस्तान को अलग करने का उद्देश्य, जैसे ये बता रहे हैं कि धर्म अनुसार किया गया है, ये इन लोगों को सोचना होगा कि ये किस तरह की गंदी सियासत करते हैं। अगर पाकिस्तान को ही हिंदुस्तान के हर एक मुस्लिम मान को अगर जाना होता, जब कत्ले आम हुआ करते थे, यहाँ से कत्ल मुसलमानों का किया जा रहा था और पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा था। ट्रेनों में इधर से कई लाशें मुसलमानों की चली जाती हैं और कई लाशें उधर पाकिस्तान से हिंदुओं की ट्रेनों में भर भर कर आया करती थी। उस वक्त यहाँ के हिंदुस्तानी नहीं डरे, यहाँ के मुसलमान जो थे अपनी जान और माल की हिफाजत करते रहे और हिंदुस्तान की इस जमीन से, इस धरती से मोहब्बत करके बिना डरे हिंदुस्तान में रहा। और उनका जब भी कहना था कि हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इसी हिंदुस्तान की धरती में हम दफन होंगे। ये उन मुसलमानों की मोहब्बत थी जो बिना डर और खौफ के यहाँ से नहीं गए, बल्कि मजबूत इरादे के साथ मुसलमान की इस जमीन पर माता चूमा और इस जमीन को अपना बनाकर इसी जमीन पर रहे। ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के दोखले जबानबाजी हैं। सर, वो क्यों ये भूलते हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, जमहूरी हुकूमत है, सेकुलरिज्म हुकूमत है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ऐसे बयानबाज नेताओं के आते रहते हैं। ये सीधा सीधा देखिए, जब बसनगौड़ा पाटिल जी की बात कहते हैं तो मैं बसनगौड़ा पाटिल जी बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक एमएलए हैं और एमएलए को सम्मान देना हर देश के नागरिकों का फर्ज है। भले ही वो किसी भी मजहब के खिलाफ आग उगलते हो, वो कुछ भी बोलते हो, मगर जो जनता ने उन्हें अधिकार दिया है उस अधिकार का भी हमें सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मैं बसनगौड़ा पाटिल जी कह रहा हूं। बसनगौड़ा पाटिल जी कहना का मतलब ये नहीं कि बसनगौड़ा पाटिल जी को सम्मान देना, बल्कि सम्मान उनकी जो ओहदा है उस ओहदे को सम्मान देना। और बसनगौड़ा पाटिल जी को भी ये समझना होगा कि वो ओहदा बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदा है। ये एमएलए जो बनते हैं उनका काम होता है कि जनता को अपना समझे, वो किसी भी धर्म के हो, और अपने मत क्षेत्र की जनता को के दुख में आगे आए, वहां की अभिवृद्धि के कामों में आगे आए और अभिवृद्धि के विकास के लिए आवाज उठाए। मगर बसनगौड़ा पाटिल ही नहीं बल्कि ऐसे कई नेता कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, अभिवृद्धि की, विकास की कोई बात नहीं करते। अगर बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की। तो मीडिया से बात करते हुए बसनगौड़ा पाटिल जी कह रहे हैं कि इस देश का खाना खाकर, इस देश का पानी पीकर, इस देश का विरोध कर रहे हैं। पहले तो ऐसे जो सवाल होते हैं और जब ये नेता इस तरह के सवाल करते हैं कि इस देश का पानी पीकर, इस देश का खाना खाकर, क्या कर रहे थे आप? इस देश का विरोध करते हैं। इस देश का विरोध करते हैं। तो पहले ये बताइए कि ये देश बसनगौड़ा पाटिल जी का एकले का नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का देश है। ये हम सब हिंदुस्तानियों को पहले समझना होगा। जी जी जी। किसी एमएलए के सर्टिफिकेट देने से, एमएलए के कहने से ये हमारा देश, ये बोलना भी अगर संविधान के नजर से देखे तो ये भी गलत है। जी। ये देश हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का है और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का फर्ज है कि वो अपने देश का खाना खाए, अपने देश का पानी पिए और अपने देश में ही दफन हो जाए। और रही इनकी और एक बात, उन्होंने क्या कहा
कि इस देश का खाना खाकर, इस देश का पानी पीकर विरोध की इस बात देश की। का विरोध कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, मैं जनता से भी कहूंगा, जहां विरोध की बात कही जा रही है तो जरा सोचिए, क्या हिजाब पहनना विरोध है? किस संविधान में, किस कानून में लिखा है कि हिजाब पहनकर कॉलेज आना विरोध है? क्या हिजाब पहनने से देश के संविधान को ठेस पहुंचती है? ये ऐसे बहुत से सवाल हैं, मगर समझ में नहीं आता कि जब इस तरह के बड़े नेता, ये कोई मामूली नेता नहीं है, ये बहुत बड़े नेता हैं, ये एमपी भी रह चुके हैं, इसके बावजूद ये एमएलसी भी बन चुके हैं और अब सिटी विजयपुर शहर के एमएलए भी हैं, उसके बावजूद इस तरह के बयानबाजी करना कहां तक सच है? आप सोचिए कि हिजाब पहनने से अगर देश विरोधी चटवटगी होती है तो समझना पड़ेगा कि ये नेता हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। सर, एक बात और उन्होंने कही है कि अगर मुझे पूछा जाए, बसवनगौड़ा पाटिल जी कह रहे हैं, अगर मुझे पूछा जाए तो उर्दू स्कूल मदरसे बंद कर देना चाहिए या इस्लामी तरीका जो भी अपना रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। अब बात फिर वहीं पर आकर रुकती है कि फिर से कहूंगा कि बसवनगौड़ा पाटिल कह रहे हैं कि मुझे पूछिए, तो ये उनकी खुद की राय है, वो जो भी चाहे कह सकते हैं, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, वो जो भी चाहे बोल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस देश का संविधान सब धर्म के मानने वालों को अपने अपने लैंग्वेज यानी कि अपने अपने जबानों को बोलने का, उसे सीखने का अधिकार देता है। ये हमारे नेताओं को समझना होगा। जब इतने बड़े नेता जब इस तरह संवैधानिक विरोध बात करते हैं, उनकी मनमानी करने की बात करते हैं, अगर मुझे पूछेंगे तो मदरसे और उर्दू स्कूलें बंद करेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सीखना है तो कन्नड़ जबान सीखिए वरना पाकिस्तान चले जाए। अब सोचिए कि ये देश में कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर मराठी बोली जाएगी, अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां तमिल बोली जाएगी, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली बोली जाएगी। हर राज्य में हर एक राज्य की एक लैंग्वेज है, वहां पर बोली जाती है। अगर यही बात अगर महाराष्ट्र में कहा गया कि अगर सीखना हो तो सिर्फ मराठी सीखिए, कन्नड़ नहीं, तो जब क्या कहेंगे बसवनगौड़ा पाटिल? तो ऐसा नहीं होगा। देश के संविधान पर चलना होगा, देश के कानून पर चलना होगा और देश के संविधान में रहकर बात करनी होगी। देश के संविधान के विरोध बात करना सिर्फ सियासतदान ही करते हैं, जनता को बांटकर सियासत करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए। इनके कहने से मैं बोलना यही चाहूंगा कि बसवनगौड़ा पाटिल की ये निजी राय है, इनके कहने से कोई कुछ नहीं होगा। देश का संविधान भी कोई चीज है, संविधान में सब धर्म के, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर धर्म को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी लैंग्वेज का, अपनी जबानों का के हिसाब से कुछ भी सीख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हिजाब का मामला इतना तोल पकड़ा हुआ है कि उड़पी से लेकर आप पूरे राज्य में चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हिजाब का मामला जो है हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन फिर भी जो है ये नेता जो हिजाब के तौर पर अपना बयान देकर लोगों में एक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं बोला ना, ये पूरी तरह से सियासती खेल है। सियासती अब कुछ ही सिर्फ एक साल के बाद इलेक्शन कर्नाटक में होने वाले हैं। जी। अक्सर आपने सिर्फ कर्नाटक में नहीं, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इलेक्शन के दौरान हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाता है और हमारे मीडिया भी इन लोगों का साथ देती है। जबकि हिंदू मुसलमान खेलने से इस देश का भला नहीं होगा, बल्कि देश में जो भाईचारगी है उसे तोड़ा जा रहा है। हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की साजिशें खेली जा रही है और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की साजिशें खेली जा रही है। हम तो यही कहेंगे इस देश के सेकुलर लोगों से कि इस देश को बचाना आपका काम है। जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो विपक्ष भी है वो विपक्ष भी मजबूत नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह यहाँ पर बात की जाती है
के मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, उर्दू स्कूलों को बंद किया जाएगा, अगर हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाए, जबकि ये सभी जो भी बातें बेबुनियादी बातें हैं, ये हमारा हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 14 उठाकर देखिए, आर्टिकल 25 उठाकर देखिए, सबको समानता दी गई है, सबको अपनी जबान बोलने का अधिकार दिया गया है, सबको अपने धर्म के अनुसार रहने का इजाजत दी गई है। फिर भी इस तरह के नेता कहते हैं तो ये विपक्ष की नाकामी है। विपक्ष ऐसे सवालों पर आगे आकर जवाब नहीं देते, इसीलिए ये नेता ऐसे पूरे हिंदुस्तान में देखिए नेता अपने जबान में जो भी आए कह देते हैं, और वो जो भक्त बने हुए हैं वो भक्तों को खुश करने के लिए होठों को अपने हाथों में थामे रखने के लिए इस तरह से हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाता है। और चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे हिंदू नेता हो, वो अपने राजनीति हिंदू मुस्लिम करके सत्ता हासिल करने के लिए, अपने वोट हासिल करने के लिए, वोटों को बनाए रखने के लिए इस तरह से मुस्लिम नेता हो वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं और हिंदू नेता हो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जनता को होशियार होना पड़ेगा ऐसे नेताओं से, जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोले, जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोले। ऐसे नेताओं को चुनो जो सबके लिए विकास की बात करे, सबके लिए रोजी की बात करे, सबको अभिवृद्धि की बात करे। ऐसे नेता चुनो जो आपके लिए, आपके वास्ते, आपके घर तक आए, और कभी ये ना देखिए कि ये इस जात का है, ये उस जात का है। अगर देखे तो सबको हिंदुस्तान का एक नागरिक समझकर देखे। सर, उन्होंने आपने विपक्ष की जो बात कही, तो बसंतगौड़ा पाटिल जी जो आज मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने विपक्ष के नेता सिद्धरामैया जी को भी कहा कि वो एक विशेष धर्म का सपोर्ट करते हैं। क्या वो हिंदू से विशेष धर्म में परिवर्तन हुए हैं? हाँ, हमेशा जो है मुसलमानों को कंधे पर बिठाए रहते हैं, तो उन्होंने उस पर भी बात की। मैंने कहा ना, बसंतगौड़ा पाटिल जो भी जबान में आ जाता है कहते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया हमेशा मुसलमानों की हक में बात करते हैं, मुसलमानों के सपोर्ट में आगे आते हैं, और उन्होंने खास करके एक धर्म को सर पर बटा रखा है जी। क्या वो सेक्युलरिज्म की बात नहीं कहती? आप सोचिए, सेक्युलरिज्म की बात नहीं कहती, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जो खुद सेक्युलरिज्म की बात नहीं करता, जो खुद कहते हैं कि दाढ़ी वाले टोपी वाले मेरे ऑफिस के सामने ना आए, वो सेक्युलर की बात कर रहे हैं। समझना ये होगा कि जब ये किसी को बोलना हो तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कि सेक्युलरिज्म के दायरे में रहकर बात करना। ये सिद्धरामैया जी को सिखा रहे हैं कि वो सेक्युलरिज्म की बात नहीं करते, वो सेक्युलरिज्म की बात करना चाहिए, जबकि ये खुद भी नहीं करते जी। आपने कई इनके न्यूज उठाकर देखिए, कई मीडिया चैनल में इन्होंने कभी मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के धर्म के लिए, मुसलमानों के अच्छे कामों के लिए कभी बात नहीं की। कभी भी उन्होंने बात की तो मुस्लिम विरोधी बात की। उन्होंने कभी भी, उनके जबान से पता नहीं क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम निकलता है, फिर भी वो सेक्युलरिज्म मानते हैं। हाँ, जबकि हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान के मुसलमान ये पाकिस्तान का नाम भी लेना नहीं चाहते। मैं खुद भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहता। अरे भाई, मैं क्यों लूं पाकिस्तान का नाम? मेरे जबान में तो सिर्फ जब तक सांस रहेगी हिंदुस्तान का ही नाम रहेगा, इंडिया का ही नाम रहेगा, क्योंकि हमने इंडिया का नमक खाया है बसंतगौड़ा पाटिल जी, इंडिया का पानी पिया है। आपने जिस तरह कहा कि इंडिया का खाना खाया है, तो हम इंडिया का ही खाना खाएंगे और इंडिया का ही गुनगुनाएंगे, और जो इंडिया को बांटने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ तो आवाज जरूर उठाएंगे। ये हमारा कहना है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक ये नहीं चाहता कि वो अपनी जबान गंदी करे, मगर पता नहीं कि बसंतगौड़ा पाटिल जी को पाकिस्तान से क्या मोहब्बत है कि वो बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए अगर आप मेरे दुश्मन हैं, तो अक्सर देखिए दुश्मन का नाम कोई सुनना पसंद नहीं करता, बिल्कुल। मगर यहाँ पर तो बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत है या दुश्मनी। अब आप ही जनता खुद अंदाजा लगा सकती है कि पाकिस्तान से इनके कनेक्शन क्या हैं।